A newborn baby has a pair of wings on his back. These wings are small, but they can't still be waved. The mother was amazed. She took Ricky to the hospital for a checkup, but the doctor found that Ricky's wings were attached to the bone. Surgery was risky and expensive. Half a month later, Ricky's wings had grown a little bit. Katie made him a special suit so he could move his wings freely. Ricky was happy to fly around on the couch. C'est bien, mon Ricky. Oh, c'est bien. Bravo. A few months later, Ricky's wings grew even bigger and sprouted feathers. Katie and Lisa wrapped all the sharp furniture in cotton and put knee pads in a helmet on Ricky. When they let go, Ricky did fly and could reach the ceiling. Ricky loved the light, so he turned his head and flew towards the window, and the next moment he hit the glass. Luckily, he wasn't hurt this day. Katie took Lisa and Ricky to the supermarket, but Ricky suddenly disappeared. Katie looked up and he was flying through the air. The other customers were shocked to see Ricky in the air. The woman lets go over Wayne child. It lets him fly into the air. Ricky had a rope attached to one of his feet, and his mom was holding it. A crowd of reporters and spectators had already gathered around him. A day ago, Ricky flew over the supermarket and attracted many shoppers. Security guards climbed up a ladder to try to catch him, but were unsuccessful. Katie suggested they turn off the lights. Sure enough, Ricky soon flew near the lighted freezer. The security guards caught him without any problem. Now that Ricky's secret is out, Death suggests that they can raise money for Ricky's operation by showing Ricky. But during the demonstration of Ricky's flying ability, Kay accidentally let go of the rope. Ricky flew on an ant and disappeared. Katie had to send out posters all over the place, but she still couldn't find Ricky on this day. Desperate, Katie went into the lake to enter life. Ricky suddenly appeared in the air. His wings were fully grown, and he had learned to walk. Ricky couldn't speak and smiled at his mom like an angel. Katie kept apologizing and pleading with him to stay, but he waved his wings and left again. Eventually, Katie got over it. Maybe the free sky is the final destination for Ricky. आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, एक यूरोपीय देश में जन्मे पंख वाले अद्भुत बच्चे ने पूरी दुनिया को ही अपने आकर्षण का केंद्र बिंदु बना लिया है। जब बच्चे ने पंखों के साथ जन्म लिया तो न सिर्फ उसके माता पिता व डॉक्टर भी हैरान रह गए। उन्होंने पंखों को ऑपरेशन के जरिए हटाने के बजाय पंख यूं ही रहने दिए तो बच्चे ने पंखों के साथ उड़ना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ के लिए बच्चे को संभालना कठिन हो रहा है। वह जहाँ भी जाता है उड़कर चला जाता है। आज सुबह दिल्ली में हुई भारी बारिश के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल संख्या 1 की छत का कुछ हिस्सा अचानक गिर पड़ा, जिसके नीचे दबकर एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने उक्त हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज भारी बारिश के कारण डूबती हुई दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली के सभी विभागों की मीटिंग बुलाई और व्यवस्था बन जाने तक 2 महीने के लिए सभी की छुट्टियां निरस्त कर आपात नियंत्रण कक्ष भी खोल दिया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने देश भर के केंद्रीय सरकारी विभागों में तैनात उन अधिकारियों व कर्मचारियों का ब्यौरा तलब किया है जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। प्रतिकूल रिपोर्ट आने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। आज झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में जमानत पर रिहा कर दिया। रिहा होते ही उन्होंने जहां केंद्र सरकार की तानाशाही की आलोचना की, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी जमकर पैरवी की। अवैध संबंधों को छिपाने के लिए एक इंसान हैवान बन बैठा और बिजनौर निवासी इस 36 वर्षीय हसीन नामक व्यक्ति ने अपनी तलाकशुदा प्रेमिका और उसके 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस 3 हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड के कम से कम 10 जिलों में मानसून की पहली बारिश 3 जुलाई तक हो सकती है, जो गर्मी से राहत के साथ ही भारी बारिश से होने वाले नुकसान को भी झेलना पड़ेगा। मंगलोर, झबरेड़ा, लंढोरा क्षेत्रों में एक गुलदार व एक शेरनी के 2 बच्चों के साथ घूमने से लोग दहशत में हैं। ग्राम कुर्डी में यह शेरनी एक महिला को मार चुकी है। वन विभाग ने
इनसे बचाव के लिए सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की है। साथ ही वन विभाग इन शेरनी, उनके बच्चों व गुलदार को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। कई बार हम एंगर को एज अ टूल यूज़ करते हैं अपना काम करवाने के लिए। जैसे एक पेरेंट है, वो अपने बच्चों के साथ, या एक बॉस है जो अपने टीम मेंबर्स के साथ इस एंगर के टूल को यूज़ करने लगते हैं। और फिर हमें लगता है कि ये टूल जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है क्योंकि काम हो रहा है। लेकिन ये सोचने की बात है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या हम अपने कंट्रोल में होते हैं? क्या हम स्टेबल फील करते हैं? शायद नहीं। तो ये समझना कि एंगर हमारी रियल पावर नहीं है। हमारी रियल पावर है वैल्यूज़ लाइक लव, कंपैशन, काइंडनेस। इन वैल्यूज़ के आधार पर जब हम बिहेव करते हैं तो हम हर सिचुएशन में राइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और अपने मन की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रख सकते हैं।